takes it to the bank to like get your data. So that's as simple as that. That is all that pans out एक real life OAuth scenario में. तो as you understood कि purpose of OAuth क्या है, डेटा बैंक से मास्टर कार्ड तक पहुंचाना with all the trust and security issues being taken care of, right? So now that we have that working, real life scenario तो देख लिया हमने. So how does it work in our dumb machine? Like computer is not a very smart machine. It needs all the instructions for it to like do anything. So yeah. So what we've done is कि in this comic strip we've basically introduced that अगर हम internet पे OAuth को implement करते हैं तो what all parties are there, what all like stakeholders are there. So first up there is a resource owner. Mr. A is the resource owner. Why? Because it is his details that is being shared, right? Uska PAN number, his bank account details, those are being shared. So he's the resource owner. Third party. Third party is that application which needs this data, which is like asking for this data. Then there is an authorization server. Authorization server is that guy which checks ki haan, if this third party is trustable, and he confirms with the resource owner also if he wants to give his data or not. And then the secretary is the redirect URI. What it does is if the customer agrees to sharing his details, the authorization server, he sends this code or confirmation slip to this redirect URI. And now redirect URI gets the code and it just goes to the resource server. The entity holding the resource is the resource server, and it goes to the resource server and it gets the data. So these were the various entities involved in OAuth: resource owner, third party, authorization server, redirect URI, and resource server. So So basically, abhi y'all just understood ki real life में how it would have fanned out. But let's just understand some of the technical details ki actual में when you click on sign in with Google या sign in with Facebook, what happens behind the curtain? तो what happens is कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है या जो वेबसाइट है वो बेसिकली क्लाइंट आईडी भेजती है ऑथराइजेशन सर्वर को. नाउ व्हाट दिस क्लाइंट आईडी वाज कि तुम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में ऑल्सो कि द थर्ड पार्टी बेसिकली द क्रेडिट कार्ड company official went to the bank clerk and told her to say that, yeah, look, I am a trusted guy. So how would we verify that the third party is trusted? So that is where client ID comes in play. If the client ID is trusted, so then the third party application is trusted. And only if the client ID was trusted, the authorization server को पता है कि now कि client ID trusted है, तो it will ask कि us basically क्योंकि we are the resource owner here, we are who want to sign in with Google या whatever it is. So it will ask us for permission whether you are comfortable in sharing your details or you permit the authorization server to share the details with third party application. Now once we confirm or we give the confirmation, what happens is the authorization server will send a authorization code, which was basically the confirmation slip in our scenario, to the redirect URI, which was the secretary back in the comic strip. But what in the computers wala part, one thing is added here, an extra layer of security basically. Once the redirect URI, which is supposed to listen for the authorization code, once the authorization code is received, if you want to get data, we need an access token. This is just an extra layer of security कि हाँ जिससे कि authorization server verify कर सके कि उसने सही जगह पे भेजी और code को. मतलब because if somehow we entered a different redirect URI or because of some error it sends to someone else, तो फिर वो आपका डेटा लीक ना हो जाए वहां से. दैट इज वाई दिस एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी इज एडेड हियर कि हाँ एक्सेस टोकन भेजा उसको, ओनली देन डेटा रिट्रीव करेगा वो. So yeah, this is how it fans out here. Once I get an access token, now the redirect URI can request the resource server to retrieve the data. I hope you guys have understood everything clearly, and we'll just wait for a minute or two. I'll share a doc that we have prepared for this explanation part, and if तुम लोग को कोई doubt है तो just
feel free to ask. Just doubts and discussions वाले चैनल पे पूछो, if you, because तुम लोग यहाँ पूछ रहे हो तो only I can see your doubts. So just Um, Radhika has shared the PDF for this first part, like the theoretical part of the lecture on Discord, so you can see it from there. we'll just wait for a minute or two so that तुम हाँ लोग को अगर कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ लो, and then अपन आगे बढ़ते हैं. हाँ, whatever doubts you have, you can just go ahead and like ask. Radhika, put it in the resources server too. हाँ मैंने दोनों. You will. Cool. सी अगर मतलब एक बार ऐसे की नोट से गो थ्रू हो जाओ तुम, एंड अगर ऐसे थियोरी वाला पार्ट कि ओथ कैसे फ्लो, ओथ का क्या है, ये क्लियर हो गया ना, तो यू वोंट हैव मच ट्रबल एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग ओथ. इट्स जस्ट अ लिटिल टेक्निकल डिटेल्स हियर एंड देयर, बट द रियल पार्ट इज इट, ऐसे कॉन्सेप्ट समझना ओथ का. So someone's asking, in the website situation example, when we sign in with Google, where do we find the access token part? See, actually क्या हो रहा है, when you sign in with Google, let's say तुमने Pinterest use किया and you sign in with Google, so the access token actually goes to the Pinterest website, to the Pinterest application, and it is Pinterest application's duty to like retrieve your data. You sort of, when you click on sign in with Google, तुम बस उसे परमिशन दे रहे हो कि हाँ ठीक है, तुम मेरा डेटा गूगल से रिट्रीव कर सकते हो. How it has to retrieve the entire like process, that is on Pinterest, and it is its duty to do that. So yeah, and we'll see कि वो ऐसे कैसे exactly play होती है when we start implementing that part right now. I I think we can begin. अच्छा, someone is typing. Yeah, we'll just wait till 6:30. Right now it's 6:28, so 2 minutes more, and then we'll start. Someone's asking, the flow of information is what, right? Yeah, the entire method that we like introduce, कि हाँ, you get an authorization code, it asks for your permission. The entire process is OAuth or open authentication. Yes. So yeah, you got that right. So like, shall we like continue now? हाँ. तो अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन या कोड वाला पार्ट. तो the aim of this workshop or code wala part is to retrieve user data from like from the channel I OAuth server, to get a student's data from channel I OAuth server basically. तो channel I also provides OAuth, मतलब channel I भी student data जो है OAuth के through third party applications को देता है. So yeah, we'll use that here. So first up, we'll begin with a few like setup things जो हम ऐसे करके ही दिखाना चाहते थे. तो
let's just start with that. So first up, go to any of your drive in your computer. We're using Windows here because majority of the people have Windows most probably. So yeah, we'll be using Windows for this workshop. So हाँ, एक minute. So the things will be quite Windows specific, but if you're on Linux, though, so you won't have too much problem. Like so, हाउ डू वी बिगिन? तो हमने वहाँ पे क्लाइंट आईडी जैसे कुछ मेंशन किया था, हाउ देयर इज अ क्लाइंट आईडी व्हिच एवरी ट्रस्टेड पार्टी हैज, राइट? So since we are using channel I auth, so how do we become trusted to channel I? That is a good question, right? तो चैनल आई में कोई भी एप्लीकेशन रजिस्टर करने के लिए फॉर यूजिंग OAuth, you have to go to the main website and then go to this developer option. If you can see, it's in the side panel. There is a developer option there in channel I. You go there and you just add a new app. Click on it. You enter your application name. Let's say test application. You enter the redirect URIs. Now redirect URIs, as Radhika mentioned, are basically listeners, right? Are server addresses जहाँ पे you want the token to be delivered, authorization code to be delivered, right? So in our case, for this workshop, we'll be using localhost colon 8080 as a redirect URI. Uh, now the client type has to be confidential or public. This is a bit detailed into OAuth, so we'll keep it confidential for now. Then you have to fill the description of your application in 127 to 511 words. And now comes the interesting part, that is like selecting कि तुम्हें कौन कौन सा डेटा चाहिए OAuth से. Whether you want students enrollment number, his branch name, his degree name, his current semester, his a faculty's department name, designation, date of birth, etc., etc. जो भी data तुम्हें चाहिए, you select all that, you agree to the terms, and you just add that app, right? And after that, the people at channel I, basically IMG, we see if that data it is viable for you to give or not, to give you or not. And then if it's like, if we see your app is quite in the scope, so we just give you a client ID and client secret. So, for the purpose of this workshop, you don't need to create an app, you don't need to ask for permission. I'll just share a client ID and client secret which I've already created for the purpose of this workshop. Radhika, pin it to Discord too. Huh. Cool. So now while she pins the client ID and client secret, so let's set up the rest of the things that will be required before we can start coding. So for any project, we just go to any direct drive of yours on your computer and just create a new folder, and you can name it anything. Let's just call it IMG workshop OAuth. You can name it anything you want. तो हमने इसको ऐसे IMG workshop OAuth नाम दे दिया. And now we'll create a new file since we have to write, like start writing code. So in order to create a new file in Windows, तुमने git bash देखा होगा. So we'll use an even simpler way here. That is, you need to hold down shift and click right click in this like drive. And there you'll see an option like this. Open PowerShell window here. And if you click on this window, you'll just get a shell type of thing, and that you can use to create a new file. So, and if you're in the right folder, it will also show the folder name, like IMG Workshop OAuth. So in the PowerShell window, you just have to type touch home.html. Okay. So this is the file that we are creating right now, home.html. Just you can just see this. If you want, I can just zoom in. Touch home.html. Touch creates a new file and okay, touch home.html. And what it does is it creates a new file in this directory. Now we'll also open up our folder in VS Code. Why so? Because like having an editor is always good, and yeah, that is the reason. But
So in VS Code, you just go to this file option here. If you're using VS Code, if you're using any other editor, you're free to open it in that. That is fine. Like in VS Code, you just go to this file option, you go to open folder, you go to your drive, you go to your folder wherever MG Workshop what was, you select this folder and it opens it up for you, right? देखो home.html या जो भी है, it opens it. So now what we'll do next is that we can start with giving it a template, basic HTML template here. So गाइस जिसके पास भी VS कोड नहीं है, जो नोटपैड यूज कर रहा है, वो सब प्लीज ये पेस्ट बिन का लिंक है, तुम लोग वहां से कॉपी कर सकते हो. हाँ, if all this is not coming in your editor, copy कर लो. हाँ मतलब एंड मैंने डिस्कॉर्ड पे भी शेयर कर दिया है, तो वहां से कॉपी कर लो. So now before we start coding, we just need to set up one final thing. हमें Chrome खोलना है. Now that sounds rather simple. Radhika, could you mute your mic for like 1 minute? हाँ. So now what we have to do is हमें Chrome खोलना है. Now that sounds very easy और simple, but हमें ऐसे Google Chrome थोड़ी चीज़ें disable करके खोलनी है. Basically एक simple restricted version of Chrome कह सकते हैं. So just go to your start menu and just write Google Chrome here. Right click on the icon and just go to open file location. Now what you have is the shortcut for Chrome. Just right click on this shortcut and again open file location. Now what this will do is it will get you to your actual location of your Chrome application. Now this is where Chrome is on my computer. It's in C, program files 86, Google Chrome application, etc. So you just do this, go to start menu, Google Chrome, open file location, you get to a shortcut of Google Chrome, you again right click, you again get to the file location. Right, now that we are here, we need to do is we'll open Chrome from command line, and what we do is we just shift and right click again, we open a PowerShell window here again. So this gives us a console in this basically Chrome folder, right? तो अब जब हम यहाँ पहुँच गए तो what we do is we type a very simple command in order to run Chrome in restricted format. Let me just type it and then I'll zoom it in for you to see. Send the command on Discord and here on the chat box, तो तुम लोग कहीं से कॉपी भी कर सकते हो, बट तुम लोग फॉलो अलोंग कर रहे हो तो इजीली टाइप भी कर सकते हो. See, till here you have to copy as it is, user data dir is equal to, then inside curly brace inside quotes तुम्हें मैंने यहाँ d:// लिखा है, राइट? तो तुम कोई और C छोड़ के कोई और ड्राइव भी यहाँ डाल सकते हो, D के जगह E F जो भी तुम्हारे ऐसे कंप्यूटर पे है, तो तुम वो ड्राइव उनमें से एक डाल सकते हो अपार्ट फ्रॉम C के अलावा और सारी ड्राइव डाल सकते हो यहाँ पे. एंड after you've done this, you just hit enter and it opens up a new Chrome window, right? So I hope that is clear to everyone. एक बार और मैं zoom करके दिखाई देता हूँ. देख लो, खोल लो क्रोम. हाँ. लोग This is double minuses, minus disable dash web dash security space dash dash user dash data dash dir is equal to this like quotes में d colon and this slash, I think it's forward slash, yeah. तो ठीक है, मतलब अज्यूमिंग कि अब सबने क्रोम खोल लिया है, लेट्स जस्ट डू समथिंग एल्स. यहाँ पे अभी अब तुम लोगों ने जिस किस भी डायरेक्टरी में बनाया है ना, वो फोल्डर अभी वर्कशॉप के लिए विल ओपन दैट डायरेक्टरी इन क्रोम बेसिकली. तो उसके लिए यू कैन जस्ट टाइप इन फाइल, आई जस्ट
type it here and Rishi's typing it there. So Rishi. तो मैंने वापस से जूम इन कर दिया है बेसिकली जो भी लिखा है उस पे. So what is written, I can also like draw it for you. That is fine. What I've written is file colon 3 slashes like normal slashes. Then the drive that you made your folder in. मैंने D drive में मेरा AMG workshop OAuth बनाया था. So D and just a colon after that. So that is all that you have to write. After you've done that, hit enter. Radhika has also posted it in the Discord server. Okay, Rishi. अच्छा ठीक है, continue. We'll just after this we are going to pause only ना, so just continue. So हाँ, अगर किसी का क्रोम नहीं खुला है तो we'll just pause after this part 2, so don't worry. और उसकी भी पीडीएफ शेयर कर देंगे, don't worry. राधिका कंटिन्यू. हाँ, तो अभी तुम लोग को डायरेक्टरी you'll have opened in what तो you can see तुम्हें दिख जाएगा वहाँ पे फोल्डर जो भी अभी तुमने बनाया है MG वर्कशॉप या OAuth वर्कशॉप whatever name you have given it. Ours was MG workshop OAuth and so we'll just click on that and you all can see कि it has opened and home.html list हो गया है वहाँ पे. तो okay, someone just told me कि not working, shift plus right click पे उसको नहीं चल रहा है PowerShell. And okay, so if someone जिसके पास और कोई ड्राइव नहीं है सिर्फ C ड्राइव है तो तुम लोग as administrator if you all can just open it. ऋषि तू दिखा सकता है क्या स्क्रीन पे एज एडमिन कैसे खोलते हैं? हाँ, what you do is go to your start menu and और just type. मतलब हाँ, जिसके भी पावरशेल नहीं खुल रहा है शिफ्ट प्लस राइट क्लिक से या ऐसा कुछ है, यू ऑल आल्सो जस्ट फॉलो व्हाटएवर हाँ, ऋषि इज डूइंग. हाँ, you just type PowerShell start menu में, you just right click and you do this run as administrator. और एक डायलॉग बॉक्स आएगा, do you want to allow this app? You just go yes और it opens the new PowerShell window. I'll just zoom it in. हाँ. Now let's say पहले तो क्रोम खोलने वाले पार्ट में हमें प्रॉब्लम थी ना. हाँ, पहले तो तो मतलब क्रोम तो खुल गया है लोगों का आई गेस. मतलब क्रोम तो एक ही पर्सन को इशू था तो पावरशेल बस एडमिन की तरह खोल के. अच्छा ठीक है, क्रोम में दिखा दे. आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू. so what you do is um, uh, आई थिंक प्रीवियस पावर शेल से एटलीस्ट ये पता चल गया होगा हमें कि इसकी एग्जैक्ट डायरेक्टरी क्या है. इट इज इन प्रोग्राम फाइल्स डायरेक्टरी स्लैश गूगल स्लैश क्रोम स्लैश एप्लीकेशन, राइट. तो आई जस्ट गो टू माई एडमिन पावर शेल. मैंने हाँ एडमिनिस्ट्रेटर पावर शेल and like I'm in the base C directory right now. Okay, if you're not in the base C directory, you can just doesn't. Okay, so you just like you'll probably end up in Windows slash system32. So just follow this cd colon dot dot slash dot dot slash. I'll just put it in. I'll just paste a link of all the commands. So now once you're in the base directory, what you do is you enter that first folder program files x86. Then I think it was in Google. Then we went to Chrome. cd is for change directory and then the just the directory's name. So we went to program files x86, Google, then Chrome. Then I think it was application. And there if I see there is a like chrome.exe and now you just type this command flag disable web security flag user data there is equal to. So this is for those of you जिनके पास सिर्फ C वो थी. ये देखो हमने ऐसे C में C बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटर पावरशेल में जाके भी ये चीज़ कर सकते हैं. Now I'll just do one thing.
कि मैं सारी ये कमांड्स डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा. Wait, I'm just putting all the commands in Discord. There you go. So you can follow this, and then after that this. Just open an administrator PowerShell, like I told. Start menu में PowerShell, right click, run as administrator, और फिर follow those steps to get a new Chrome. Let me just close a lot of PowerShell. और कुछ डाउट है किसी को? हाँ, what did we have to type in Chrome? Yeah, तो Chrome में तुम्हें ये लिखना था, सी file colon // d/. If you can see, so it is file, then a single like colon, then triple slashes, and then the drive in which you made your OAuth workshop folder, and then in my case it was D, and then a colon. Radhika, can you like put this in Discord if it's Just take a second. I was answering someone. अच्छा, I'll put it. Touch is not working. So if touch is not working, you can do one thing. कि तुमने अगर VS Code या किसी एडिटर में खोल लिया है, तो जैसे VS Code में तो इट इज एज सिंपल एज राइट क्लिक न्यू फाइल, तो तुम वो भी कर सकते हो नई फाइल बनाने के लिए. या फिर लेट मी जस्ट चेक इफ दैट वर्क्स हियर. नहीं, you'll have to change प्लीज में जाके. इट्स बेटर, तुम लोग वहां जाके चेंज कर सकते हो बहुत इजीली. जो भी एडिटर यू आर यूजिंग उसमें यू कैन गो एंड क्रिएट अ न्यू फाइल. देयर यू विल गेट एन ऑप्शन टू ऐड द एक्सटेंशन ऑफ HTML और जावास्क्रिप्ट, एनीथिंग. अगर तुम्हारे उसमें PowerShell में एरर आ रही है ना, तो जस्ट डू वन थिंग. तुमने git bash डाला होगा मोस्ट प्रोबेबली पहले लेक्चर के लिए, तो जस्ट git bash हियर, इट विल ओपन अप द git bash and you just touch a.html. ओके, ये तुम्हारी फाइल बना देगा वो. तो जस्ट वैसे ही शिफ्ट एंड राइट क्लिक, ओपन git bash here and touch command delete. How did you get the basic template of HTML in VS Code? So you do ठीक है, वो this, you पिन type. कर रखा है. अच्छा, हाँ, वैसे तो it is pinned. बाकी if you start typing HT, so it comes up with a like selection box and you just choose HTML5 and वो it will give it. ठीक है. तो इफ यू कैन मूव फॉरवर्ड नाउ, होपेंगे तुम लोगों ने सबने फॉलो अलॉन्ग कर लिया है. लेट्स जस्ट, मैंने की नोट, वैसे तो मैंने ये इस पार्ट के लिए भी जो PDF बनाई थी हम लोगों ने, आई हैव शेयर्ड इट इन द रिसोर्सेज सेक्शन एंड द डाउट्स एंड डिस्कशंस सेक्शन आल्सो. जस्ट चेक इट आउट इफ तुम लोग फॉलो नहीं कर पाए हो तो. Cool. So let's just start now. Let's just begin coding now. ठीक है. सो सबसे पहले तो वी नीड्स, हमने देखा था कि साइन इन विद चैनल या साइन इन विद गूगल ऐसा रहता है. तो सबसे पहले तो वी नीड अ बटन. सो लेट्स जस्ट टाइप इन एंड क्रिएट अ बटन. एंड बटन में लेट्स राइट साइन इन विद चैनल आई. तो अब इफ यू ऑल क्लिक ऑन
home.html in your Chrome, तो you can see कि एक बटन आ गया है with sign in with channel I. बट अभी अपन ने कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो अगर अपन इस पे क्लिक करेंगे तो नथिंग विल हैपन. सो तुम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की वर्कशॉप में देखा था कि मतलब कोई भी ये बहुत स्टैटिक पेज है, तो इसमें अपन को चीज़ें ऐड करनी है, वर्क फ्लो ऐड करना है बेसिकली, तो जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी अपन को. तो लेट्स जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर जावास्क्रिप्ट. home.js बना लेते हैं सिंस वी हैव home.html here. Let's just have abhi, now that we have created home.js, let's just start writing. I have shared client ID and client secret with you all, right? हाँ. सो सबसे पहले तो हमने करा क्या था, जब हमारे बटन पे क्लिक होता है तो व्हाट द थर्ड पार्टी डज इज कि वो जो परमिशन मांगती है अपनी क्लाइंट आईडी भेज के. तो सबसे पहले तो वील नीड अ क्लाइंट आईडी टू कंफर्म टू द लाइक ऑथराइजेशन सर्वर की हम ट्रस्टेड है. तो लेट्स जस्ट कॉपी द क्लाइंट आईडी जो मैंने भेजी थी, और जस्ट इफ यू ऑल वांट इट अगेन तो आई शेयर इट अगेन. अभी एक मिनट, पहले ये लिख लो फिर कॉपी कर लेना वहां से. तो अभी व्हाट वी नीड इज वी नीड इट टू रीडायरेक्ट अस टू द परमिशन वाला पार्ट. तो लेट्स जस्ट राइट अ फंक्शन नेम्ड रीडायरेक्टर. लेट्स जस्ट, हाँ, अब रीडायरेक्टर में वेयर डू वी नीड इट टू रीडायरेक्ट, तो इसके लिए ये अभी फॉर हम चैनल आई के लिए कर रहे हैं. तो फॉर चैनल आई वी हैव अ स्पेसिफाइड यूआरएल. तो वो यूआरएल इज, आई जस्ट टाइप इट इन हियर. तो तुम लोग यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, और तुम लोग जो ऋषि टाइप कर रहा है अगर वहां से देख के कर पा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड. इट्स बेसिकली internet.channelai.in slash Rishi. Could you just say paste it in the Discord channel also? I'll just post this code snippet. Whatever this part plus client ID, whatever it is, तो कर दे शेयर. अब बेसिकली अपन को इस पेज पे रीडायरेक्ट करना है ना, तो रीडायरेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि इस पेज पे अपन को अपने ब्राउजर को बेसिकली रीडायरेक्ट करना है. तो लेट्स जस्ट सेट उस ब्राउजर की लोकेशन इस यूआरएल पे. तो फॉर दैट वी हैव विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू यूआरएल. अब फंक्शन तो लिख लिया हमने, तो अब HTML में इस जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं. फॉर दैट वी हैव स्क्रिप्ट टैग्स, एंड स्क्रिप्ट टैग्स में लेट्स जस्ट राइट व्हाटएवर तुमने जो भी नाम लिखा है वहां पे, और टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट. आई एम अज्यूमिंग जावास्क्रिप्ट की वर्कशॉप में ये पार्ट किया है तुमने. एंड बटन पे क्लिक करने पे वी वांट कि रीडायरेक्टर कॉल हो जाए, तो बटन में विल हैव टू राइट दैट ऑन क्लिक इज इक्वल टू रीडायरेक्टर बेसिक. बस काफी सिंपल है ये. If you all want, I'll just share इसके कोड का भी लिंक. डिस्कॉर्ड पे I have shared those both the links on Discord. अब अगर कि कोई फॉलो लॉन्ग नहीं कर पाया तो, बट अभी वी कैन गो टू क्रोम और तुम लोग देख सकते हो कि व्हेन यू क्लिक ऑन साइन इन विद चैनल आई, just reload the page every time you like go back. Okay, reload it. it is redirected to the channel I portal which is asking कि ये परमिशन मांग रहा है. तो as you saw कि हमने क्या क्या पार्ट कर लिया, रिमेंबर वो कॉमिक स्ट्रिप के हिसाब से.
sign in with channel I हो गया. And now once this like channel I has verified that we are a trusted party with this client ID, उसने हमसे मतलब यूजर से परमिशन मांगी कि हाँ he wants to connect your channel I account, it will receive the following information, right? So now if I allow it, so it will just send the authorization code. So now we can like get to that part now, authorization code तो वाला. बेसिकली अभी अलाउ करेगा तो कहीं पे रीडायरेक्ट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि अपन ने क्या देखा था कि रीडायरेक्ट कहाँ करेगा, ये लोकल होस्ट कोलन 8080 पे। बट हमने तो कोई अभी तक लिसनर चला नहीं रखा, तो अभी अपन को पहले तो लिसनर चलाना पड़ेगा। तो लिसनर क्रिएट करने के लिए बेसिकली अभी हमें एक सर्वर चलाना होता है, मतलब कंप्यूटर्स में लिसनर क्रिएट करने के लिए एक सर्वर चालू करना रहता है। तो हम कैसे अभी विल जस्ट ट्राई क्रिएटिंग अ सर्वर। तो तुम लोग पावरशेल खोल लो। पावरशेल प्रीवियसली इफ खुला है तो इट्स फाइन, अगर नहीं खुला है तो जस्ट ओपन द पावरशेल। और पावरशेल अगर तुम लोग डायरेक्टली वहां से खोल पा रहे हो आईएमजी वर्कशॉप वाले फोल्डर में तो ठीक है, अगर तुम लोग नहीं खोल पा रहे हो तो आई गेस प्रीवियसली तुम्हें स्टेप्स बताए थे और तुम लोगों ने खोल ही लिया होगा उससे। तो जस्ट ओपन इट एंड उसके बाद में वी कैन टाइप इन द कमांड टू स्टार्ट अ सर्वर। आई हैव शेयर्ड द कमांड ऑन लाइक यहाँ की चैट पे भी मैंने शेयर कर दी है एंड ऑल्सो शेयर्ड इट ऑन डिस्कॉर्ड। तो जस्ट कॉपी कर लो कहीं से भी। हियर 8080 इज जस्ट द नंबर जो लोकल उसके बाद था हमारे रीडायरेक्ट यूआरआई में। तो जस्ट नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो अब लिसनर स्टार्ट हो गया है अपना। ओके लिसनिंग तो स्टार्ट हो गया है। हाँ। हाँ अच्छा, ठीक है कंटिन्यू. तो अभी वी जस्ट सॉ कि जब हमने ब्राउजर में क्लिक तो इट हैज टू रीडायरेक्ट टू लोकल होस्ट कोलन 8080 राइट। तो उसके लिए जहां रीडायरेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए विल जस्ट क्रिएट अ न्यू HTML फाइल index.html एंड उसमें you all can just type in एक बार if you all will type nothing तो I guess that would work or that won't work, I am not sure, but मैंने शेयर कर दिया था तुम लोग के साथ में बेसिक जो कोड है वो तुम लोग कॉपी कर सकते हो, या तुम लोग ये जो भी यूज कर रहे हो अगर वो ठीक है तो उसमें डायरेक्टली भी आ जाएगा। तो बेसिकली हमने एक index.html फाइल बना लिया अब उसी डायरेक्टरी में, वापस से वही HTML टेम्पलेट जो तुम वापस कॉपी कर सकते हो, और बॉडी के अंदर हमने बस हेलो देयर लिख दिया. ओके. तो अब अकॉर्डिंग टू आर सॉर्ट ऑफ थियरी, नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन अलाउ इट शुड सी इट, अगर हमने अलाउ किया तो इट बेसिकली सर्व्ड अस दिस पेज. ये HTML फाइल उसने हमें रिटर्न कर दी क्योंकि यहाँ भी हेलो देयर लिखा हुआ है. नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो तुम देख पाओगे, दैट इज ये देखना कि इस यूआरएल में लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश जो भी है उसके बाद क्वेश्चन मार्क कोड इज इक्वल टू देयर इज समथिंग, राइट? सो बेसिकली हम जब वहाँ से रीडायरेक्ट होके आए, जब हमें चैनल लाइन ने यहाँ रीडायरेक्ट किया हमारे रीडायरेक्ट यूआरएल पे, उसने उसके साथ ब्राउज़र के यूआरएल में कोड भी डाल दिया, ऑथराइजेशन कोड. नाउ वी एक्सट्रैक्ट इट सॉर्ट ऑफ. तो इसके लिए स्टेप्स क्या थे? index.html बना लो, एक बेसिक स्टफ जो भी लिखना है लिख लो. पाइथन सर्वर वी होप ऐसे सबके स्टार्ट हो गए होंगे, वरना वील गिव टाइम फॉर दैट आल्सो, डोंट वरी, पाइथन सर्वर स्टार्ट करने के. और जब हम वापस से उस वेबसाइट पे अलाउ क्लिक करेंगे तो इट विल जस्ट start it will redirect us here, hello there, and with a code in the URL. Hello.
Radhika, you want to continue? अच्छा, I thought we were just stopping because लोग का पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आई गेस 2 मिनट रुक जाते हैं और पहले उनका पाइथन इंस्टॉल करवा लेते हैं. Python was not found. Okay. Python install करना is rather simple मतलब Windows पे. Just install Python Windows. ये it'll probably install जो होना चाहिए. तो मतलब हाँ, Python जिसका भी पाइथन इंस्टॉल नहीं वो देख लो और कर लो इंस्टॉल. you you go to install Python for Windows. Python releases for Windows. Latest Python release. मैक पे जिसको भी मैक पे जाना है एक वॉइस चैनल ज्वाइन कर लो. सेकेंड ईयर राइट्स हेल्प कर देंगे वॉइस चैनल पे तुम लोगों की. अगर किसी के पास हाँ. विंडोज नहीं है तो, या लिनक्स है या मैक है, तो जस्ट गो ऑन अ वॉइस चैनल, तो पीपल विल हेल्प यू देयर. और जस्ट सो कि अगर पाइथन इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा है तो इट्स ओके, यू कैन जस्ट लुक एट हाउ व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि हम इसमें हाँ, ऐसे डॉक वॉक शेयर कर देंगे तो तुम बाद में ऐसे यू कैन फॉलो अलोंग. तो अभी यू कैन ट्राई जस्ट एंड कीप अंडरस्टैंड व्हाट अंडरस्टैंडिंग स्टफ कि हाँ ऐसे हो रहा है. एंड अगर अंडरस्टैंडिंग में कोई डाउट्स है तो वो पूछ लो. तो आई गेस अपन अभी ही, इफ यू हैव स्टॉप्ड नाउ, तो मैं अभी थर्ड पार्ट के नोट शेयर कर लेती हूँ, फिर अपन साथ में कवर कर लेंगे बचा हुआ पार्ट भी. आई हैव पोस्टेड द लिंक पाइथन इंस्टॉल करने के लिए. शो इंडेक्स शो एचटीएमएल एंड अच्छा, index.js का एक मैसेज. अगर तुम लोग नहीं देख पाए तो की नोट्स 3 वाला जो फोल्डर है उसके अंदर देर आर लिंक्स, तुम लोग वहां से देख सकते हो अभी. इफ तुम लोगों ने नहीं मिस कर दिया है तो वहां से तुम लोग कॉपी कर सकते हो बहुत इजीली. दिस इज index.html और .js. I guess this was the only issue, I guess, कि people were not having Python installed. हाँ, आई गेस पाइथन इंस्टॉलेशन की इशू होगी. ठीक है, तो आई थिंक अपन वो पार्ट तो अंडरस्टैंडिंग वाला ही है, वो कर सकते हैं. हाँ तो यू गाइज, कैन अभी सी. फॉलो अलोंग कर लो. हाँ, एक बार वर्कशॉप हाँ, व्हाट अभी वी डू. जस्ट, हाँ मतलब अभी कोड नहीं लिख रहे क्योंकि अभी जस्ट 2 सेकेंड विल जस्ट अंडरस्टैंड कि अपन ऑथ कोड कैसे ले सकते हैं यूआरएल से. तो वो देख लो एक बार. तो बेसिकली विंडो डॉट लोकेशन जो थी, वी नो कि वहाँ पे अपना यूआरएल है, तो विल जस्ट राइट विंडो डॉट लोकेशन. अब इसको इफ देखेंगे तो इसके अंदर देर इज अ टैब नेम्ड सर्च, जिसके अंदर देर इज कोड एंड स्ट्रेट. तो इस स्ट्रिंग में वी हैव कोड, राइट? तो लेट्स जस्ट गेट इट. विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च. Now that we have this string, we can see कि and% के बाद में there is another part which is state equals to something, and उसके पहले we have something code equals to whatever we have, we require authorization code, right? So there is a thing called split strings in JavaScript. So we'll just split this at and%. तो and% पे split कर लेते हैं. Now what we have is we have an array with 2 elements, जिसमें पहला एलिमेंट में अपना ऑथराइजेशन कोड है. तो पहले एलिमेंट से ले लेते हैं. सो ए डॉट स्प्लिट इसका 0th इंडेक्स बेसिकली. अब इसमें वी हैव क्वेश्चन मार्क कोड इक्वल्स टू पहले. तो वी कैन जस्ट रिप्लेस दिस विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग. सो जस्ट टाइप इन डॉट रिप्लेस question mark code equals to. सर हाँ, तो वी कैन सी कि हमारे पास अब ऑथराइजेशन कोड आ गया है. तो
जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में भी अपन ऐसे ही लिखेंगे तो हमें ऑथराइजेशन कोड मिल जाएगा और फिर अपन फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं. तो वेयर इज इट? हाँ, So तो let's जस्ट just create now, create a JS file now. index.js. और इसमें सेम ही कोड लिखना है जो अभी अपन ने कंसोल में देखा कि ऑथराइजेशन कोड क्या था. सी दिस वुड हाँ. So अभी सेम ही है. इफ यू वांट तो आई कैन जस्ट टाइप इट इन. Discord. I've shared the code snippet on Discord also. अगर कोई कॉपी करना चाहता है तो वहां से कॉपी कर सकता है. अगर तो ठीक है. वी हैव ऑथराइजेशन कोड नाउ. तो अपने पास में एक बार ऑथराइजेशन कोड आ गया. अब अपन को क्या चाहिए? अब पहले इसमें अपन को एक्सेस टोकन के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. तो जो एक्सेस टोकन के लिए जो रिक्वेस्ट करनी होती है वो मतलब बेसिकली अब चैनल आई अपना रिसोर्स प्रोवाइडर है ना. चैनल आई ऑथराइजेशन सर्वर है. तो फॉर एवरी लाइक गूगल फेसबुक सबके अलग अलग तरीके होते हैं मतलब डेटा भेजने के. तो अपन देख सकते हैं वहां जाके कि उन्होंने किस तरह से डॉक्यूमेंट कर रखी है चीजें. जस्ट तो लेट्स ओपन अप चैनल आई का बेसिकली किस तरह से एक्सेस टोकन लेना वो करता है. सो you go to omniport.readthedocs.io, this website. This is Omniport's official documentation. Omniport is like the core app thing behind channel IMG key hai basically. It's an open source like campus portal. So you go there and you go to this part, how to, and there you'll find use Omniport OAuth 2 and you just select this use Omniport OAuth 2. तो अभी तक हमने जो भी किया ना वो सब यहाँ लिस्टेड होगा. जैसे रजिस्टरिंग योर एप्लीकेशन, रिमेंबर वो बड़ा सा रजिस्टर मतलब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिससे क्लाइंट आईडी सीक्रेट आती थी, दैट पार्ट. ऑथराइजिंग द यूजर, redirect them to auth/authorize, remember, sending your client id, etc etc. Then user has to allow. यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं. Now handling the response from OAuth 2, Omniport OAuth 2. As we saw कि हमने ऑथराइजेशन कोड अब निकाल लिया है. नाउ व्हाट वी वांट इज एक्सेस टोकन, राइट? तो अब ओमनीपोर्ट क्या कहता है कि once your application has an authorization code which we have now, it will now need to exchange the auth code for a pair of access and refresh tokens from Omniport. To get these tokens, you'll need to make a post request to openauth/token with the following parameters. अब पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है? तो ऐसे हमने एक ब्लॉग शेयर करा था HTTP रिक्वेस्ट पे, राइट? HTTP पे HTTP अगर किसी ने पढ़ा हो तो वेल एंड गुड, अगर समझ आ गया हो तो वैसे काफ़ी अच्छा. बट अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो HTTP अभी के लिए ऐसा समझ लो, इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेजेस विच ड्राइव द इंटरनेट और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक तरीका है बेसिकली. तुम्हारे ब्राउजर्स और ऐसे बड़े सर्वर्स लाइक गूगल, फेसबुक, इन सब के बीच, ठीक है? दैट इज़ व्हाट HTTP इज़. अब क्योंकि HTTP इंफॉर्मेशन से शेयरिंग का तरीका है, तो देर आर अ फ्यू वेज HTTP में भी कि जिस फॉर्मेट में तुम इंफॉर्मेशन भेज सकते हो. जैसे वन ऑफ दोज वेज इज मेकिंग अ पोस्ट रिक्वेस्ट, HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट? वो डेटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में एक स्पेसिफिक तरीके से भेजती है. तो इट्स जस्ट अ वे टू लाइक सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम client, which in which case it is a browser, to a server which is the channel I server. ठीक है? तो अभी पोस्ट रिक्वेस्ट बस इतना ही समझ लो.
तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है उस रिक्वेस्ट के साथ? क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, समथिंग कॉल्ड द ग्रांट टाइप जो इसने बता दिया है, शुड बी ऑथराइजेशन कोड, redirect URI and the code that we received. So now let's just I'll just tell you कि कैसे exactly वो HTTP request बनाते हैं. तो JavaScript में there is a really nice as a feature for making HTTP requests called XML HTTP request. Okay, so what we do is we declare a variable HTTP var HTTP is equal to new XML HTTP request. Okay, what this does is this creates an HTTP request object. हम इसकी मदद से अलग अलग ऐसे सर्वर्स पे गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट ऐसी चीज़ें भेज सकते हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, ठीक है ना? तो नाउ व्हाट वी डू इज http.open. what we want to do is we want to make a post request to where? So let's just define var retrieve token url is equal to internet.channel.n/open_auth/token, right? So we have to send the data to this retrieve token URL, right? So yeah, now we also need to send जो भी इन्होंने data मांगा है, client ID, client secret, etc. etc. First up, I forgot to do this. We'll also need to do this, which is var client ID is equal to just a sec. So this is our client ID, client secret. So these are our two things. उसके अलावा it also asked us कि तुम अपना grant type as authorization code भेज देना. So we'll do that too. var grant type is equal to authorization code. This is all documented at channel I. Grant redirect URI. Remember हमने जो भरा था basically that is what we have to fill in. Then the authorization code, right? That we already have authorization code करके. So now we'll just sort of मतलब हम इसे एक specific data format में लिखेंगे, which is let's say data, which is the entire info जो हमें भेजनी है, that would be equal to client underscore ID is equal to client ID and client is equal to client secret and client sorry grant underscore type is equal to grant type and redirect underscore URI is equal to redirect URI and final code is equal to authorization. तो as you can see कि जो data हमने भेजा है that is in the form of client ID is equal to this and client secret is equal to something else and grant type is equal to authorization code SSA, right? Now there is a little as a technical, you can actually just copy the one line I am writing right now because that is not very necessary for you to like understand, which is basically सही एक्स www फॉर्म हाँ यूआरएल फॉर्मेट कोडेड सही है ना? हाँ Cool. अच्छा यूआरएल नहीं लिखना है हाँ सर. एक्स हाँ
तो दिस जस्ट टेल्स कि हाँ हम डेटा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में भेज रहे हैं, तो सर्वर यू कैन जस्ट रिट्रीव इट. नाउ व्हाट वी डू इज http dot send, and what do we send? This data that we have. Okay. Now that we send the request, तो जब सर्वर को लगेगा कि हाँ ये रिक्वेस्ट सही है, इसमें सारा डेटा आ गया है, तो what it will do is it will send a response, right? तो तुम्हारे JS के वर्कशॉप में तुम्हें इवेंट लिसनर्स के बारे में बताया होगा. जैसे हम एक बटन को क्लिक करते हैं, दैट इज एन इवेंट. हम जावा HTML में किसी वेबसाइट पे किसी बटन को क्लिक करते हैं, दैट इज एन इवेंट. हम कहीं हवर करते हैं तो दैट इज एन इवेंट. तो उसी तरह से HTTP में भी इवेंट्स होते हैं. और इवेंट लिसनर भी बताया होगा कि दोज आर द फंक्शंस जो कॉल होते हैं एक इवेंट होने पे. जैसे बटन को कॉल किया था हमने यहाँ, तो ये रिडायरेक्टर कॉल हुआ था. बटन को सॉरी क्लिक किया था तो रिडायरेक्टर कॉल हुआ था. वैसे ही वी विल राइट एन इवेंट फॉर दिस, इवेंट लिसनर फॉर दिस, विच इज ऑन रेडी स्टेट चेंज. यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. ये वो इवेंट है कि जब सॉर्ट ऑफ जब हमारे HTTP रिक्वेस्ट पे कुछ रिस्पॉन्स आता है सर्वर की तरफ से, तब ये वाला इवेंट लिसनर या ये जो हम फंक्शन लिखने वाले हैं वो कॉल होगा, राइट? तो दैट इज ऑल दैट दिस ऑन रेडी स्टेट्स changes. You don't need to go into too much details. Now what we do is we check up few things. I'll just write it first and then I'll explain it to you. And so what this means is कि अब जब सर्वर एक्चुअली वेरीफाई कर लेता है ना कि हाँ तुमने सारा डेटा सही से भेजा, मतलब तुमने क्लाइंट आईडी भी ठीक भेजी, सीक्रेट भी ठीक भेजा, जो भी है सब ठीक भेजा है, तो इट सेंड्स अ स्टेटस विद द रिस्पॉन्स दैट इट गिव्स. और वो स्टेटस अगर 200 हो तो दिस मीन्स दैट योर रिस्पॉन्स इज गुड. जैसे तुमने सुना होगा 404 नॉट फाउंड, तो 404 इज बेसिकली अ स्टेटस, उस रिक्वेस्ट का स्टेटस, रिस्पॉन्स का स्टेटस, राइट? तो 404 इज अ स्टेटस, उसी तरह से 200 इज अ स्टेटस फॉर एवरीथिंग वेंट वेल. तो हम चेक करते हैं कि इफ एवरीथिंग वेंट वेल, लेट्स जस्ट console.log the response that we receive, right? So after we've done this, I think we'd already like did this. तुम लोगों ने जीएस इंपोर्ट नहीं करी है तो वहां पे जीएस इंपोर्ट कर लेना, वरना इट वोंट वर्क. हाँ, with this line. तो जस्ट अलाउ पे क्लिक करेंगे. ओके, ऐड. Let me just check what. Auth. नहीं. तो इफ यू कैन सी कि हमारी रिक्वेस्ट पे ऐसे 200 आ गई, एंड वी सॉर्ट ऑफ गॉट द एक्सेस टोकन, राइट? ये देखो सर्वर ने हमें एक्सेस टोकन भेज दिया. अब जस्ट अ सेक. लॉग ट्रिपल इक्वल कर दे वहां पे, शायद इसलिए लॉग नहीं हो. http dot ओह status सॉरी and http सॉरी, dot state. सॉरी. हाँ, जावास्क्रिप्ट इज अ फनी लैंग्वेज. Building a mod, not. ये लिखा है http dot status and http dot state. Already. http dot Oh, ready state. sorry for that fumble. हाँ, तो as you can see जो भी डेटा हमें सर्वर से आया, that is logged now, access token, expires when, blah blah blah.
राधिका कंटिन्यू. हाँ, तो नाउ दैट वी हैव लाइक रिसीव्ड द रिस्पॉन्स, उसमें से अब तुम लोग अगर कंसोल में जाके इफ यू सी कि इट इज अ स्ट्रिंग बेसिकली, could you just write http.response text? हाँ, तो इट्स अ स्ट्रिंग, तो इसको पहले विल हैव टू पार्स एंड कन्वर्ट इनटू अ फॉर्मेट विद जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट. तो लेट्स जस्ट राइट हाँ, json.parse and our response text basically. तो अभी यू कैन सी कि अब हम एक्सेस टोकन देख पा रहे हैं उसमें, तो डॉट एक्सेस टोकन करेंगे तो विल बी एबल टू रिट्रीव द एक्सेस टोकन फ्रॉम द रिस्पॉन्स जो हमें सर्वर ने भेजा है बेसिकली. तो लेट्स जस्ट गो टू द कोड और उसमें लेट्स राइट एक्सेस टोकन इक्वल्स टू Just define variable बाहर, outside this हाँ बाहर डिक्लेयर कर ready, डिफाइन कर दो. ready state loop, whatever it is. अंदर यू कैन राइट जस्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं. मैं शेयर कर देती हूँ डिस्कॉर्ड पे भी, तुम लोग वहाँ से देख रहे हो तो. As you can see, जो भी यहाँ लिखा है ना, basically json.parse http record, बस वही सेम चीज यहाँ पे भी लिख दी. This basically gets us the access token. तो अब नाउ दैट वी हैव एन एक्सेस टोकन, व्हाट डू वी वांट? वी वांट कि इस एक्सेस टोकन की मदद से अपन डेटा ग्रैब करें. तो इधर तो अपन डायरेक्टली ग्रैब कर सकते हैं डेटा, या अपन अच्छी तरह से करते हैं. तो लेट्स जस्ट ऐड अ बटन. अब जो बोलेगा कि अगर एक्सेस टोकन आ गया तो एक बटन ऐड कर लेते हैं पहले, तो अपन इसी के अंदर ऐड करते हैं जिससे सिर्फ तभी ऐड हो, इनिशियली ना दिखे. तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन, तो इससे वी हैव एन एलिमेंट नाउ बटन, जिसके अंदर अपन क्या लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं अपन बटन डॉट इनर HTML से. इसमें लेट्स जस्ट राइट ग्रैब द डेटा, गेट द डेटा, ग्रैब द डेटा, प्रिंट योर डेटा, कुछ भी लिख सकते हो तुम. तो ये लिख लिया. अब इसको अपन को अटैच करना है अपनी बॉडी में, तो लेट्स जस्ट राइट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी अपेंड चाइल्ड, और इसमें वी कैन पास बटन. तो लेट्स जस्ट सी बटन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है. रिलोड कर लेते हैं, अलाउ, एंड देन यू कैन सी कि बटन ऐड हो गया है. तो नाउ दैट हमारा बटन ऐड हो गया है, हम क्या चाहते हैं कि बटन पे क्लिक करने पे वो यूजर का डेटा ग्रैब कर ले, राइट? तो लेट्स जस्ट राइट एक दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन लिख लेते हैं अब जो कि डेटा ग्रैब करेगा बेसिकली अपने लिए. लेट्स राइट फंक्शन गेट यूजर डेटा, या तुम और भी कुछ नाम दे सकते हो जो भी तुम देना चाहते हो बेसिकली. तो इसमें अब अपन एक बार वापस अब डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, बिकॉज यूजर डेटा कैसे ग्रैब करना है ये भी वी शुड नो. तो यू कैन सी कि यूजिंग एक्सेस टोकन करके देयर इज अ सेक्शन, उसमें इट्स रिटन कि अपन को कहाँ रिक्वेस्ट मारनी है. अब देयर इज रिटन की गेट रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है. पिछली बार अपन ने पोस्ट रिक्वेस्ट मारी थी, इस बार वी जस्ट हैव टू क्रिएट अ गेट रिक्वेस्ट. तो open auth slash get user data पे we have to send the request और we have to set header. previously भी हमने एक header set किया था जो we didn't explain to you, but तो similarly यहाँ पे भी we have to set authorization header which is bearer space access token. so and फिर जैसे अपन send कर देंगे it will send us the data. so we can write the code. let's just write retrieve data URL, retrieve data URL, and I'll just send this URL on Discord, so you can copy from there. Retrieve data URL, and once you've written the retrieve data URL, we can just again use the same HTTP object that we were using, http.open, and this time we have to create a post request, get request. So let's just write get and retrieve data URL.
तो ओके, सो अब लेट्स सेट द रिक्वेस्ट हेडर विच इज http डॉट सेट रिक्वेस्ट हेडर. इसमें वी हैव टू राइट ऑथराइजेशन, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा है कि इसी तरह से लिखना है अपन को, ऑथराइजेशन. एंड देन तुम लोग वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो और तुम डायरेक्टली भी यू कैन राइट देयर बेरर एंड देन स्पेस एंड प्लस द एक्सेस टोकन जो हमें मिला था, एंड जस्ट सेंड इट देयर. तो http डॉट सेंड. सो प्रीवियसली भी हमने क्या किया था, वी जस्ट एडेड अ लिसनर एंड देन वी चेक की इज एवरीथिंग ओके एंड इज द http लाइक रिक्वेस्ट डन. तो वही अपन इस बार भी करेंगे. विल जस्ट एड अ लिसनर http डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज एंड उसमें विल राइट अ कंडीशन विच चेक्स कि एवरीथिंग वेंट फाइन और नो. So just write http dot status is equal to 200 and http dot ready state is xml http request. Done. So अभी let's just try it and log कर देते हैं एक बार के लिए response को. अब अपन ने फंक्शन तो लिख दिया, ऑन क्लिक भी लिखना है. सो लेट्स just write button dot on click, जहाँ पहले अपन ने बटन बनाया था वहीं पे get user data. यू डोंट हैव टू कॉल इट, जस्ट सिंपली लिख दो, पेरेंथेसिस बनाने की जरूरत नहीं है इस बार. सो नाउ यू कैन सी कि गेट यूजर डेटा पे क्लिक करते ही वी हैव ऑल ऑफ दिस डेटा, बिग चंक ऑफ डेटा. एंड ओके, तो अब तुम लोग देख सकते हो कि वी हैव ऑल द डेटा, जो भी हमने उधर टिक कर रखा है वो सारा डेटा अपने पास आ गया है. एंड बेसिकली OAuth का फ्लो तो वी हैव इम्प्लीमेंटेड, बट सिंस ये अभी इतना सुंदर नहीं दिख रहा है, इसको वी कैन मेक बेटर. वी हैव लाइक रिटन CSS, तो हम भेज सकते हैं तुम लोग को अगर यू ऑल वांट टू यूज इट. बट OAuth का फ्लो वी हैव अंडरस्टूड. सो अगर विल पॉज अभी, तो अगर किसी को OAuth में कोई भी डाउट है तो जस्ट पूछ लो अभी एक बार, और तुम लोग फॉलो नहीं कर पाए हो तो जस्ट कैच अप कर लो. इफ़ यू वांट मैं एक बार ऐसे शुरू से ये वाली चीज़ चला के दिखा दूँ. सी, हमने सबसे पहले क्या किया, हम उस वाली वेबसाइट पे गए. लेट्स से इसने OAuth बना रखा था, तो इट्स अ साइन इन विद चैनल आई. आई क्लिक ऑन साइन इन विद चैनल आई. इसने अपनी क्लाइंट आईडी भेजी चैनल आई को. चैनल आई चेक कि हाँ इट इज़ अ ट्रस्टेड क्लाइंट. इसने हमारे सामने एक परमिशन की स्क्रीन प्रेजेंट की. क्या आप इस OAuth वर्कशॉप वाली ऐप को अलाउ करते हैं डेटा अपना देना? एंड इफ़ आई क्लिक ऑन अलाउ, तो आई गेट हियर हेलो देयर. आई मीन अभी तो हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है इसके बाद, बट नाउ वंस वी क्लिक ऑन गेट द डेटा, वी जस्ट गेट द यूजर्स डेटा, राइट? तो OAuth वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दिस. अब तुम्हें बेसिकली इतने से पीस ऑफ कोड से किसी भी यूज़र का डेटा मिल सकता है. मतलब तुम अपनी एक ऐसी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो जिसमें तुम स्टूडेंट का डेटा यूज़ करो. ऑल दैट यू हैव टू डू इज हुक इट अप विद चैनल आई OAuth, राइट? तो इट्स क्वाइट सिंपल. अब राधिका विल प्रॉब्ली शेयर जो ऐसे CSS अभी मैंने, सम ऑफ. हाँ, मैं फाइल्स ही शेयर कर देती हूँ तुम लोगों के साथ में, if you हाँ, want. तो हमने तो इसे सुंदर बनाने के लिए CSS लिखी थी. यू कैन जस्ट इट्स हैव अ फन. लिटिल बेटर, थोड़ा बेटर दिखता है बस. दैट्स इट. बेसिक हम फ्लो वी हैव एक्सप्लेन्ड योर. दिस कोड इज इजी. अवेलेबल ऑन गिटहब. तो आई एम ऑल्सो शेयरिंग द गिटहब लिंक, तो तुम लोग वहां से भी देख सकते हो. देयर इज नो इशू. विजिट ओके. शेयर कर देती हूँ. आफ्टर इस कोड में, बट क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो है वो तुम्हें गिटहब पे नहीं मिलेगा. वो आई हैव शेयर्ड ऑन डिस्कॉर्ड ओनली, तो वहीं से कॉपी कर लेना. अब है, इफ यू आर नॉट ऐसे, मतलब तुम्हारे इसके बाद अगर क्रोम नहीं खुल रहा है,
दैट मीन्स तुमने ये एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं चलाई थी. वी शोड लाइक टू वर्जन्स, वन फॉर दोज हु हैव सीन. अगर तुम्हें PowerShell एडमिनिस्ट्रेटर में चलानी है तो ऑल दैट यू हैव टू डू इज type PowerShell in the start, right click and run as administrator. And then you can just follow all the commands जो ऊपर लिखा है and it will just get you there. कोई भी डाउट हो किसी को तो यू कैन ऐसे फ्रीली आस्क ऑन डिस्कॉर्ड. फिर अगर यू कैन पिंग अस ऑन दिस. हाँ, मैं पर्सनली भी पिंग कर सकती हूँ, देयर इज नो इशू. हाँ. बट डिस्कॉर्ड पे भी पूछ सकते हो तुम लोग. हाँ. हाँ, we will be sharing the recording for this lecture on YouTube. It will be shared, don't worry. If- Even after installing Python, still can't make the server. Um, if it's an error, you can paste the screenshot there, or you can uh, one of the members from ING, can you help him voice channel में कोई ऐसे स्क्रीन प्रेजेंट करके ऐसे देख सकता है क्या वहाँ वॉइस चैनल में. इफ एनीवन कैन हेल्प हिम सार्स. ओके. आई थिंक इसके अलावा अभी तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते बिकॉज फ्लो हमने बता दिया है. ऑल्सो वन थिंग कि जो ये अभी हमने फ्लो बताया, इट इज़ जस्ट एक वो वाला फ्लो जो थर्ड पार्टी के परस्पेक्टिव से होता है. वी हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड लाइक OAuth कंप्लीटली बिकॉज चैनल आई में हमने यूज़ किया तो चैनल आई ने भी कुछ इम्प्लीमेंट किया होगा, तो वो वाला पार्ट वी हैव नॉट डिस्कस्ड. वी हैव जस्ट डिस्कस द थर्ड पार्टी को क्या दिखता है एंड हाउ डज द थर्ड पार्टी बिहेव बेसिकली. और ये ऐसे काफ़ी एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रिप डाउन वर्जन ऑफ OAuth था. हमने तुम्हें बस एसेंशियल चीज़ें ही ऐसे एक्सप्लेन करने की ट्राई करी है कि एग्जैक्टली फ्लो कैसे चलता है. हम काफ़ी डिटेल में नहीं गए बिकॉज अगेन फालतू में कंफ्यूजिंग होता वो, जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ अदर वर्कशॉप्स जो हमने लिए. तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम बेसिक समझ जाओ कि OAuth कैसे चलती है. क्योंकि अब तुम्हें अगर अब हमारे कैंपस के लिए कोई एप्लीकेशन बनानी है, वी एक्चुअली प्रमोट दैट कि यू क्रिएट एप्स फॉर दी कैंपस, और तुम्हें अगर यूज़र डेटा उस केस में चाहिए तो यू कैन जस्ट apply for the OAuth client ID and client secret on channel I, and we'll be happy to give you that. So this was to uh, make you familiar with OAuth so that you can also like build applications जो institute के काम आए हैं. Why did we send redirect URI in the first post request? What was its use? हम देखो जो डेटा ये हमने ऐसे रीडायरेक्ट यूआरआई और ये सब पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजा था ना, उसका यूज बेसिकली ये था. जैसे हमने क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, ये सब असल में जो थर्ड पार्टी होती है ना, उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए होता है कि हाँ जो भी ऐसे मतलब थर्ड पार्टी है वो सॉर्ट ऑफ कोई क्या कहते हैं उसको, कोई इम्पोस्टर तो नहीं बैठा हुआ. मतलब किसी ने बीच में ऑथराइजेशन कोड सुन लिया, ही इज ट्राइंग टू गेट द एक्सेस टोकन, तो वैसा कुछ तो नहीं है. तो दीज आर टू प्रिवेंट दैट. रीडायरेक्ट यूआरआई का एक और यूज होता है, बट वी वोंट गो इनटू दैट मच डिटेल्स. इट इज एक्चुअली यूज्ड टू लाइक चेक कि कौन से यूआरआई पे सॉर्ट ऑफ रीडायरेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा. बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि ये सारा डेटा मोस्टली आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए होता है थर्ड पार्टी की. कुछ भी ऐसे डाउट हो तो यू कैन जस्ट पिंग ऑन डिस्कॉर्ड. someone asking something again. Radhika, you want to say tell them? I don't think doubts हैं तो आई डोंट don't थिंक अब talk डाउट about है तो एक बार वो वाली चीज बोल देती हूँ मैं कि for the recruitments we'll be sharing details soon, so just keep following us on Facebook, Discord and Instagram. वहाँ पे we will be posting details. कुछ भी नया इवेंट अगर हम होस्ट करेंगे तो हम वहीं से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो just keep following us. एंड गाइस इसी के साथ इस वाली वर्कशॉप के साथ दी IMG वर्कशॉप सीरीज इज लाइक कमिंग टू हॉल्ट, कमिंग टू एन एंड.
तो वी होप कि तुमने ऐसे कुछ नया सीखा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा इन 4 वर्कशॉप में। उसके अलावा वी होप कि इससे तुम्हारी डेवलपर जर्नी एक ऐसे अच्छे नोट पे शुरू हुई होगी, एंड लाइक we will be happy to develop applications for the institute or like for any of the purposes that you want. And अगर कभी भी कोई भी डाउट हो तो that Discord server is always open, and like we'll be happy to help you anytime you like ping us on the doubts discussion or any other channel. So yeah, so there's that. So thank you for joining So us. let's just wrap up. हाँ, Bye, guys. thank you for joining us. Thank you for joining.